morning. Good morning, everyone. Good morning. Okay. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning. So today we'll be starting with the network models. Okay, basically there are two types of models. One is your OSI model and another one is your TCP/IP model. Okay, so we will just have a look कि क्या है models and we'll have a brief introduction about all the layers जो हमें पढ़नी है, and then in detail जो भी उनके numericals हैं, all those numericals that are there with related to each particular what you can say layer, and जो topics हैं हर layer से related that we will discuss later in the sessions. ठीक है? So जो आपके नेटवर्क मॉडल्स हैं, मतलब उससे आपको कोई कुछ थोड़ा सा ऐसा आइडिया है? जो भी मतलब नेटवर्क मॉडल्स बेसिकली किस उस पे बेस्ड हैं, कौन सी अप्रोच पे बेस्ड हैं, कुछ आइडिया है एनीवन? यस. ISO. सो जो भी आपके मॉडल्स हैं बेसिकली दे यूज लेयर्ड अप्रोच. ठीक है? लेयर्ड अप्रोच का मतलब होता है कि दे बेसिकली आर distributed in forms of certain layers and then these layers interact with each other. Okay, so this is what they mean by layered approach. Now the next thing is ki एक minute. Okay, what is the model name? अब हम पढ़ेंगे first model. कल हमने पढ़ा था organizations, right? Standards and organizations we studied yesterday. So एक हमने पढ़ा था ISO. ठीक है, याद है? राइट. सो ISO बेसिकली क्या है, क्या करता है, उससे रिलेटेड हम पढ़ेंगे आगे का अपना OSI मॉडल जो हमारा आया है. सो जो OSI मॉडल है बेसिकली क्या है कि ISO स्टैंडर्ड है. ISO स्टैंडर्ड वाज व्हाट इट कवर्स ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ नेटवर्क कम्युनिकेशंस. ठीक है? सो ISO स्टैंडर्ड ने एक अपना एक स्टैंडर्ड निकाला या मॉडल दिया. यू कैन से दैट ISO इज अ स्टैंडर्ड. ठीक है, ये ध्यान रखना बिकॉज बहुत कंफ्यूजन आता है. ISO आपका एक स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है एंड OSI आपका एक मॉडल है. ठीक है, जस्ट रिमेंबर दिस, इसमें डाउट नहीं रहना चाहिए. सो ISO स्टैंडर्ड दैट कवर्स ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ नेटवर्क कम्युनिकेशन इज योर ओपन सिस्टम्स इंटरकनेक्शन. दिस इज योर फुल फॉर्म ऑफ OSI. ठीक है, ओपन सिस्टम्स इंटरकनेक्शन. ओपन सिस्टम्स इंटरकनेक्शन, ये चीज प्लीज याद रखना. मैं यहाँ लिख देती हूँ. Open system interconnections. Okay.
So ये मॉडल बना when it was made, it was introduced in late 1970s. ठीक है. So what is it? Open system is a set of protocols. So ये क्या है? Basically एक protocols का set है. What is protocols? Protocols are your rules. So open system is a set of protocols that allows any two different systems. मतलब आपके पास दो different systems हैं and you want to share something, you want to share your information with each other, and the systems are completely different. So with the help of this open systems interconnection model, you will be able to communicate with each other. How? Regardless of the underlying architecture. अब computers different किस sense में होते हैं? With the on the basis of the architecture. ठीक है? मतलब कोई भी different types of लगता है कि कोई भी different type of architecture use कर रहा हो, एक computer अलग use कर रहा हो, एक computer अलग use कर रहा हो. So how you will communicate with each other? You will communicate using OSI model. The purpose of OSI model is to show how to facilitate communication between the different systems without requiring changes to the logic of the underlying hardware and software. See, ये तो आपको पता होगा कि any system, whatever system we have, it is made up of hardware and software. ठीक है, but and it is obviously very मतलब easy भी है और necessary भी है कि हर system जो है उसका अपना hardware होगा, अपना software होगा. ठीक है, मतलब irrespective to the other one. So अब दो systems जिनका hardware भी अलग है, जिनका software भी अलग है, how will they communicate? Suppose I am using computer A and you are using computer B. I want to share some information with you. तो मैं आपसे कैसे share करूँगी? Because हमारा तो hardware software सब अलग होगा. So for that purpose, they introduced this OSI model कि without changing your hardware and software. मतलब या तो एक possible case ये था कि if I would have to interact with you, I would या तो मुझे अपना system change करना पड़ता या आपको. So without changing the logic, मतलब without changing your hardware and software, we are able to communicate with each other. That was the purpose of OSI model. So OSI model is not a protocol. It is a model for understanding and designing a network architecture that is flexible, robust, and interoperable. ठीक है, so OSI model में how many layers are there? 7 layers are there. Okay, so first is your physical layer. ठीक है, so what is physical layer? Physical layer में आपको क्या है? It transmits raw bit stream over the physical medium. मतलब कि अभी जब मैं आपको डिटेल में थोड़ा सा पढ़ाऊंगी, आगे आपको क्लियर हो जाएगा. बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि जब दो कंप्यूटर्स को इंटरैक्ट करना होता है, दो सिस्टम्स को इंटरैक्ट करना होता है, सो दे इंटरैक्ट विद द हेल्प ऑफ फिजिकल लेयर ओनली. ठीक है, जो सेंडर है, नाउ सपोज कि सेंडर ने यहाँ पे आपका सेंडर है, सपोज दिस इज योर सेंडर, समवॉट ओवर हियर इज योर रिसीवर. अगर ऐसे है, ठीक है, सो सेंडर विल सेंड द इंफॉर्मेशन लाइक दिस. सो एप्लीकेशन लेयर से सेंड करेगा और वो फिजिकल लेयर पे आएगी. सो यहाँ पे जो सेंडर को जो इंफॉर्मेशन मिली वो उसको फिजिकल लेयर के थ्रू, ये फिजिकल लेयर दूसरे फिजिकल लेयर से किसी भी मीडियम के थ्रू कनेक्ट हो सकती है. ठीक है, तो ये इसको कनेक्ट होगी एंड देन इट विल सेंड द इंफॉर्मेशन टू द रिसीवर. यहाँ पे आप कुछ भी मीडियम हो सकता है, राउटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. राउटर तो नहीं, बेसिकली जो भी आपके ट्रांसमिशन मीडियम्स होंगे वो हम पढ़ेंगे इन डिटेल लेटर. तो फिजिकल लेयर जो है सेंडर की, वो फिजिकल लेयर इंटरैक्ट करेगी रिसीवर की फिजिकल लेयर से, और फिर आपका इंफॉर्मेशन जो है वो रिसीवर की यहाँ से ऐसे सेंड होगी एंड आपको जो मिलेगी, यू विल बी एबल टू सी दिस इंफॉर्मेशन एट एप्लीकेशन लेयर ओनली. ठीक है, नाउ बैकग्राउंड नॉइस आ रही है? हर किसी को आ रही है क्या बैकग्राउंड नॉइस? Yes, ma'am, not clear. अच्छा, ओके, वेट. ओके, ठीक है. सो नाउ व्हाट इज द फिजिकल लेयर? फर्स्ट लेयर हो गया आपको, और ये आपका इनका स्ट्रक्चर यही रहेगा. ठीक है, थ्रू आउट. तो आपको ये याद करनी पड़ेगी 1 2 3 4 5 6 7 की किस नंबर पे कौन सी लेयर है ओएसआई मॉडल में. तो फर्स्ट हो गया आपकी फिजिकल लेयर. सेकंड है आपकी डेटा लिंक लेयर. वो डिफाइन करती है कि आपका जो नेटवर्क पे आप डेटा शेयर करोगे उसका फॉर्मेट क्या होगा. थर्ड इज योर नेटवर्क लेयर. नेटवर्क लेयर ये डिसाइड करती है कि कौन सा पाथ आपको लेना है अपना डेटा को
अगर कंप्यूटर ए से कंप्यूटर बी पे सेंड करना है, सो नेटवर्क में कौन सा पाथ आपको यूज करना है। फिर ट्रांसपोर्ट लेयर है, ट्रांसपोर्ट लेयर पे आप डेटा ट्रांसमिट करते हो, देयर आर सर्टेन प्रोटोकॉल्स, टीसीपी, यूडीपी, वो हम पढ़ेंगे डिटेल में। फिर आपका सेशन लेयर, सेशन लेयर बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द पोर्ट्स एंड सेशंस, ठीक है। इसमें आपका सेशन लेयर में एक टर्म होता है, डायलॉग सिंक्रोनाइजेशन टाइप का टर्म होता है। तो बेसिकली जो सिंक्रोनाइजेशन होती है, फॉर दैट योर सेशन लेयर इज नेसेसरी। फिर प्रेजेंटेशन लेयर क्या है कि इसमें आपका डेटा इंक्रिप्शन होता है टू एंश्योर दैट डेटा इज सेफ एंड इज इन यूजेबल फॉर्मेट। और एप्लीकेशन लेयर बेसिकली क्या है, ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन लेयर, जैसे आपकी ईमेल होगी, वेयर एप्लीकेशंस कैन एक्सेस द नेटवर्क सर्विसेज। अच्छा, नाउ अगर आपको मुझे कुछ मान लो मेल भेजना है, ठीक है, you are A and there is a person B suppose and he wants to send an email. So email जो है आपकी वो बेसिकली है आपकी क्या, एप्लीकेशन लेयर का पार्ट, ठीक है। सो यहाँ से आपने ईमेल सेंड किया, अब ईमेल ऑब्वियसली बी के भी ईमेल पे ही आएगा, ठीक है। बट हमें तो बस इतना दिखता है कि ईमेल हमने भेजा एंड सेकंड वाले जो रिसीवर है उसको ईमेल डायरेक्टली मिल गया, बट the email has to go through all these layers in, अभी तो आपके TCP मॉडल में तो these three have been combined, but generally email has to go through all these three layers to reach to you. पहले वो क्या करेगा, पहले ईमेल आपका जाएगा यहाँ से एप्लीकेशन लेयर से सारी लेयर्स क्रॉस करके फिजिकल लेयर पे आएगा, दिस इज योर फिजिकल लेयर। फिर ये फिजिकल लेयर से वो जाएगा दूसरे जो आपका रिसीवर है उसके फिजिकल लेयर पे, और फिर वो जाएगा आपके बी, मतलब एंड इट इज सच, मतलब इतनी क्विकली होता है कि आपको पता भी नहीं चलता कि ओके, आप सोचते हो कि अरे मैसेज तो गया भी इतनी जल्दी। सो दिस इज हाउ द मैसेज और द नेटवर्क और योर एनी इंफॉर्मेशन ट्रेवल्स ऑन द नेटवर्क, ठीक है। मतलब आपके कोई भी मैसेज है, कोई भी इंफॉर्मेशन है, इफ यू वांट टू ट्रैवल इट, आपको नेटवर्क यूज करके ट्रांसमिट करना है ऑन वन डिवाइस टू अदर, सो दिस इज हाउ यू विल यूज इट। आपको तो बस ये है कि आपका सिर्फ इंटरेक्शन इस लेयर से हो रहा है, दैट इज योर एप्लीकेशन लेयर। बट मीनवाइल सारी की सारी लेयर्स अपना काम करना शुरू कर देते हैं जैसे ही यहाँ पे एप्लीकेशन लेयर पे कोई डेटा आता है, ठीक है। सो अब इसमें आपका क्या होता है बेसिकली, अब इसमें यू हैव टू दिस, ये चीज का ध्यान रखना कि सपोज यहाँ पे आपने मैसेज भेजा, सो दिस विल सेंड द मैसेज टू दिस वन, ठीक है। यहाँ से आपका प्रेजेंटेशन लेयर पे आया, जैसी प्रेजेंटेशन लेयर ने देखा कि ओके यहाँ पे मेरे पास मैसेज आया है, सो इट विल add something and then it will send it to the session layer, फिर session layer, transport layer and then ऐसे ऐसे आपका ट्रांसफर होता रहेगा, ठीक है। अब the passing of data and network from, okay, जो आपकी ये थ्री लेयर्स हो गई, जस्ट एक मिनट, यस, layer 1, 2 and 3, these three layers are your network support layers, ठीक है। ये हो गई आपकी नेटवर्क सपोर्ट लेयर्स। 5, 6, 7 ये हो गई आपकी यूजर सपोर्ट लेयर्स, ओके। एंड दिस इज योर ट्रांसपोर्ट लेयर, ये किसी उसमें नहीं आती, दिस इज अ सेपरेट, दैट इज योर ट्रांसपोर्ट लेयर। So now what is network support layers and what is transport and user support layer, ठीक है। So we'll just I'll write it and then we'll have a study, ठीक है, because इसके notes मेरे पास बने हुए थे, so I just thought it would be better कि मैं इसे आपको ऐसे पढ़ा दूंगी तो और क्लियर हो जाएगा। So first thing we have to study is what is network support layers। क्या लगता है आपको क्या होगा network support layers का मीन? What do you think is network support layers? क्या मतलब हो सकता है? मतलब from name we can understand that they are basically the layers that supports the network, ठीक है। तो network को कैसे support कर सकते हो आप? So these okay, somebody has said something, ma'am, internet related something, see these layers basically, अब इसमें आपकी कौन सी लेयर आ गई, physical layer, ठीक है। So these layers deal with your
फिजिकल एस्पेक्ट्स, ठीक है। फिजिकल एस्पेक्ट से मतलब कि जो भी नेसेसरी चीजें हैं फॉर नेटवर्क, फॉर इंफॉर्मेशन टू ट्रैवल ऑन द नेटवर्क, दैट इज मूविंग डेटा फ्रॉम वन डिवाइस। फिजिकल एस्पेक्ट से मतलब हो गया मूविंग डेटा फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर, ठीक है। और इसको आप कैसे यूज करते हो, कोई भी फिजिकल कनेक्शंस लेके, ठीक है, कोई भी आपका फिजिकल कनेक्शन जैसे है, सो दैट टाइप ऑफ लेयर्स जो ये हेल्प करें कि आप कैसे अपना डेटा सेंड कर रहे हो, और वो डेटा जो है वो इतना फीजिबल हो कि दैट हैज नो एरर इन इट, एंड इट इज, मतलब जो भी आपके कंस्ट्रेंट्स हैं, जो नेटवर्क में आपके कंस्ट्रेंट्स हैं, उनको वो अच्छे से उन पे वर्क कर ले, और कोई भी ऐसी एरर ना हो, कोई भी ऐसा लॉस ना हो जिसकी वजह से कोई प्रॉब्लम आगे वाली लेयर्स को हो। So these layers deal with the physical aspects, that is moving data from one node or one device to another. ठीक है। अच्छा, यूजर सपोर्ट लेयर्स क्या हो गई, इसका एग्जांपल भी लिख देते हैं। एग्जांपल हो गया आपका फिजिकल कनेक्शन। तो कौन सी लेयर्स हैं आपकी नेटवर्क सपोर्ट लेयर्स? नेटवर्क सपोर्ट लेयर्स हो गई आपकी लेयर 1, 2 एंड 3। कौन कौन सी लेयर्स है लेयर 1, 2, 3? फिजिकल लेयर, यस, data link layer and network layer. यस, ठीक है। सो ये नाम याद रखना। फिर आपकी आई यूजर सपोर्ट लेयर्स। सो यूजर सपोर्ट लेयर्स बेसिकली आपकी होती हैं 5, 6 एंड 7। सो व्हाट आर दीज लेयर्स 5, 6 एंड 7? Application layer, presentation layer, session layer. ठीक है, आपने 7, 6, 5 की बताइए, ध्यान रखना कि उल्टा आपने बोला, ठीक है, मतलब 7 वाली एप्लीकेशन लेयर होती है, ये चीज ध्यान रखना। सो नाउ दिस इज वेरी इजी। ये जो है आपकी इंटरऑपरेबिलिटी को हेल्प करती है, दैट इज कि जो लेयर्स हैं वो अच्छे से आपस में वर्क करें एंड यूजर को कोई ज्यादा इशू ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। सो इंटरऑपरेबिलिटी अमंग दी अनरिलेटेड, जो भी सॉफ्टवेयर्स हैं जो आपस में रिलेट नहीं कर पा रहे हैं, उनके बीच में ऑपरेबिलिटी होना अमंग दी अनरिलेटेड सॉफ्टवेयर्स। ओके, दिस इज योर यूजर सपोर्ट लेयर्स। और ट्रांसपोर्ट लेयर तो आपकी क्या होती है? ट्रांसपोर्ट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर बेसिकली जो दो नेटवर्क्स को या दो सब ग्रुप्स को लिंक करती है आपस में, ठीक है, जो मतलब ट्रांसपोर्ट लेयर बेसिकली एक्ट्स एज अ लिंक बिटवीन दीज टू लेयर्स। ओके, सो अगर कोई आपसे पूछे कि व्हिच इज द लेयर दैट लिंक्स द टू सब ग्रुप्स जैसे आपके ये वाले हैं, दीज टू सब ग्रुप्स, सो इट works as a bridge or as a connection between the network support layer and the user support layer, जिससे कि lower layers that are your network support layers ने अगर कुछ भी send किया है, so वो easily user support layers तक send हो जाए। क्लियर हो रही है मेरी बात? So it links the two subgroups. That is network support layer and network and user support layer. Now, अब जो चीज आपको ध्यान से पढ़नी है वो ये है, जैसे डायग्राम, ठीक है। अब इसमें क्या डायग्राम है? सपोज ये आपकी एक डिवाइस है, दिस इज योर डिवाइस 1 एंड दिस इज योर अनदर डिवाइस, ठीक है, एंड यू आर सेंडिंग एनी डेटा और एनी इंफॉर्मेशन फ्रॉम डिवाइस 1 टू डिवाइस 2, ठीक है। सो यहाँ पे आपकी क्या आई? ये है आपकी एप्लीकेशन लेयर, फिर आपकी है प्रेजेंटेशन लेयर, then you have session layer, transport layer, network layer, data link layer and physical layer, ठीक है। So between each these layers, हर layer के बीच में there is an interface, ठीक है, there is an interface between each of these layers. Now can you tell me what is the work of this interface? Any idea? Interface is a platform Ma'am, between connector. two devices.
सी, जो आपने मैसेज सेंड किया एप्लीकेशन लेयर से टू द फिजिकल लेयर, ठीक है, वो अब ऐसे तो क्योंकि ये लेयर्स भी अलग अलग है, राइट, दीज लेयर्स आर आल्सो डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर, सो दे सेंड इट विद द हेल्प ऑफ इंटरफेस. सो व्हाट इज बेसिकली इंटरफेस? सो इंटरफेस में क्या डिफाइन होता है? इंटरफेस डिफाइंस, I'll write it over here. इंटरफेस बेसिकली ये डिफाइन करता है कि व्हाट टाइप ऑफ योर इंफॉर्मेशन, क्या इंफॉर्मेशन आप भेज रहे हो, और सर्विस अ लेयर मस्ट प्रोवाइड, ठीक है. सो इंटरफेस ये डिफाइन करता है कि व्हाट टाइप ऑफ मैसेजेस, व्हाट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन यू आर सेंडिंग, ठीक है, एंड सर्विसेज अ लेयर, जो मतलब आपके जो भी आपकी लेयर के जो फंक्शंस हैं, जो भी आपके लेयर के जो भी आप बोल सकते हो कि सर्विसेज हैं, वो क्या है, वो सारी चीजें इंटरफेस में मेंशन्ड होती हैं. So that is how you are able to interact, or these layers are able to interact with each other. Clear हुई चीज? तो अब इससे क्या होता है, अगर वेल डिफाइंड इंटरफेस है अगर आपके पास, और आपके लेयर के जो फंक्शंस है वो प्रॉपर्ली मेंशन्ड है, तो आपके नेटवर्क को क्या मिलता है, आपके सिस्टम को, आपके जो नेटवर्क है उसको मिलता है मॉड्यूलैरिटी. मतलब कि अब वो किसी भी सिस्टम में किसी भी कंडीशन में अच्छे से वर्क कर सकता है. सो दिस इज द यूज ऑफ इंटरफेस. ठीक है, क्लियर हुआ चीज? इंटरफेस में क्या होता है, इंफॉर्मेशन क्या सेंड होनी है और लेयर का क्या फंक्शन है बेसिकली वो मेंशन होता है. क्लियर हो गई चीज? ठीक है. अब एक चीज और ध्यान रखनी है आपको यहाँ पे, या वन थिंग दैट यू हैव टू रिमेम्बर इज कि जो आपकी ये होती है ना यूजर सपोर्ट लेयर्स, जो यूजर सपोर्ट मतलब आपकी सॉरी दीस अपर ओएसआई लेयर्स, ये वाली जो है, ये अपर ओएसआई लेयर्स जो है आप सॉफ्टवेयर में इंप्लीमेंट करते हो, ठीक है, और जो लोअर ओएसआई लेयर्स हैं वो आप हार्डवेयर में इंप्लीमेंट करते हो, ठीक है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर. बट जो ये आपकी फिजिकल लेयर है ये सिर्फ हार्डवेयर में ही इंप्लीमेंट होती है. सो व्हाट यू हैव टू रिमेम्बर इज कि जो फिजिकल लेयर है वो सिर्फ हार्डवेयर में इंप्लीमेंट होगी, जो बाकी लोअर ओएसआई लेयर्स हैं वो हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर में होगी, और जो आपकी ये ऊपर की जो लेयर्स हैं, जो ऊपर की लेयर्स हैं, ये आपके सिर्फ सॉफ्टवेयर में इंप्लीमेंट होंगी. ठीक है. अब जो मैं आपको पॉइंट समझा रही थी वो ये इंटरफेस ट्रांसपोर्ट लेयर सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर में? सॉफ्टवेयर, ठीक है, क्योंकि इसमें आपके प्रोटोकॉल्स आ जाएंगे ना, बाकी सारा आपका प्रोटोकॉल. देखो आपका फिजिकल लेयर जो है बेसिकली क्या होता है, फिजिकल मीडियम पे वो आपकी जो है डेटा को ट्रांसमिट करता है, ठीक है, सो वो आपका हार्डवेयर का पार्ट हो गया. फिर अब डेटा लिंक लेयर जो है आपका बेसिकली वो फॉर्मेट डिफाइन करता है नेटवर्क पे कि डेटा का फॉर्मेट क्या होगा, सो वो आपका हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन होगा. सिमिलरली नेटवर्क लेयर क्या है, वो आपके डिवाइस से नेटवर्क ले रहा है, फिर उसमें आपके कुछ अलग अलग प्रोटोकॉल्स हैं जो वर्क करते हैं. दैट इज ऑल्सो कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. बट जो आपकी ये हो गई सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर, वो सारी जो है वो बेसिकली सिर्फ सॉफ्टवेयर पे वर्क करती है. ठीक है, ओके. ना यहाँ पे मैं जो आपको पॉइंट समझाई, सपोज ये आपका एक मैसेज है, लेट मी जस्ट चेंज द कलर. ठीक है, सो दिस इज द मैसेज दैट यू वांट टू सेंड. अब यहाँ पे क्या होगा कि इस मैसेज के अलावा हर लेयर जो है अपना एक हेडर ऐड करती है. ठीक है, जस्ट रिमेंबर दिस, हर लेयर अपना एक हेडर ऐड करेगी. सो इफ आई से दैट, इफ आई राइट इट एज डी, दिस इज योर डेटा, ठीक है, इसको मैं रिप्रेजेंट करूंगी डी से. सो यहाँ पे क्या हुआ, एप्लीकेशन लेयर पे जब ये डेटा आया, सो व्हाट इट विल डू, व्हाट इट विल ऐड इज, इट विल ऐड अ हेडर. ठीक है, सो ये आपका अगर डेटा है, सो यहाँ पे आपका H7 मीन्स कि हेडर ऑफ एप्लीकेशन लेयर. H7 मीन्स हेडर ऑफ एप्लीकेशन लेयर. ये चीज क्लियर हुई? ठीक है, फिर उसके बाद अब व्हाट यू डिड, अब आपका ये आया, दिस विल रीच योर प्रेजेंटेशन लेयर. सो फॉर प्रेजेंटेशन लेयर दिस whole is a message. ठीक है, so this whole is a message for presentation layer. So अब presentation layer क्या करेगा, presentation layer will simply add its header that is H6, और ये पूरा आपका मैसेज की तरह आ जाएगा यहाँ पे. ये क्लियर हुई आपको? ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ मैं क्या एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ? मैम हेडर का यूज क्या है मैम? हेडर ऐड कर रहे हैं
वो मैं बताऊंगी। ये बताओ पहले, ये समझ में आया कि हेडर जो है आपका किस पे ऐड हो रहा है और किसके लिए ऐड हो रहा है, कैसे ऐड हो रहा है। हेडर बेसिकली आपकी इंफॉर्मेशन कंटेन करता है कि आपको मैसेज किसको सेंड करना है। देखो डेटा आपने भेजा, अगर मैं आपको बोल रही हूँ इफ आई एम सेइंग जस्ट हाय, ठीक है, सो मैंने तो बस एप्लीकेशन लेयर पे हाय लिख दिया ना, वो कैसे पता कि किसको जाना है किसको जाना है। सो ऑल दिस इंफॉर्मेशन, अब यहाँ पे जब आप ईमेल मेंशन करते हो तो ईमेल में आप एड्रेस मेंशन करते हो कि यहाँ जाना है वहां जाना है, ठीक है, बट जो आपका बॉडी होती है उसमें हाई होता है, ठीक है। सो ये पूरी जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है कि सेंडर कौन है, रिसीवर कौन है, डेस्टिनेशन क्या है, और सोर्स क्या है, मॉडल क्या है, मोड क्या है, ये सारी जो आपकी चीजें वो हेडर में ऐड होती है, ठीक है। सो व्हाट इज देयर, यहाँ पे आपका डेटा था, फिर आपका एक इंफॉर्मेशन ऐड हुई H7, दैट इज योर हेडर, ठीक है। फिर जब ये आपकी गई फिजिकल लेयर में, सो ये H7 जो H7 और D बन जाएगा आपका मैसेज, एंड header 6 will add, header 6 is your header for presentation layer। फिर जब वो आगे सेशन लेयर में जाएगा तो सेशन लेयर अपना एक हेडर ऐड कर देगा H5, और ये पूरा जो है आपका मैसेज का पार्ट हो जाएगा। फिर सिमिलरली दिस होल विल बिकम अ पार्ट ऑफ मैसेज एट ट्रांसपोर्ट लेयर, और वो एक अपना हेडर H4 ऐड कर देगा और बाकी सबको ऐसे ही रहने देगा, ठीक है। फिर नेटवर्क लेयर भी ऐसे ही ऐड करेगा अपना हेडर, सारी के सारे लेयर्स अपना अपना हेडर ऐड करते हैं। सो लास्ट में जो फिजिकल लेयर पे आएगा वो आएगा H1, दैट इज द हेडर ऑफ फिजिकल लेयर, एंड पूरा आपके सारे के सारे हेडर्स ऐड होते चले जाएंगे। नाउ बेसिकली हेडर्स आर व्हाट, अब जब आपने ये भेजा इधर, आपने भेजा इस वाले सिस्टम को ये मैसेज, सो नाउ दिस फिजिकल लेयर व्हाट इट विल डू, इट विल जस्ट ओपन द हेडर ऑफ दिस फिजिकल लेयर, ठीक है। अब ये मैसेज आपका एज इट इज यहाँ आ गया, तो यहाँ पे इट विल रीड दिस H1, इस H1 पे वो रीड करेगा एंड इट विल गेट द इंफॉर्मेशन कि ओके आई हैव टू सेंड दिस टू द डेटा लिंक लेयर। फिर जब डेटा लिंक लेयर पे आएगा, सो डेटा लिंक लेयर विल ओपन दिस हेडर दैट इज H2, जो H2 का हेडर है वो ओपन करेगा, उससे बाकी की इंफॉर्मेशन मिलेगी कि ओके आई हैव टू कैरी दिस फॉरवर्ड टू दिस लेयर दैट इज योर नेटवर्क लेयर। फिर नेटवर्क लेयर जो है अपना हेडर जो H3 है वो ओपन करेगा और उससे सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। फिर ट्रांसपोर्ट लेयर के पास जाएगा आपका डेटा, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर जो अपना हेडर है दैट इज H4, जो ट्रांसपोर्ट लेयर ने यहाँ अप्लाई किया था उसको ओपन करेगा, एंड उसके बाद वो आपकी आगे चल जाएगा। सी हेडर का पूरा एक फॉर्मेट होता है, अभी आप पढ़ोगे आगे IPv4 एंड IPv6, ठीक है। सो इनमें जो इनके हेडर्स होते हैं इनका अपना एक फॉर्मेट होता है पूरा, सो वो जो फॉर्मेट है वो हम पढ़ेंगे IPv4 का, तो उसमें आपको और क्लियर हो जाएगा कि बेसिकली आपकी क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपके हेडर में स्टोर होती है। हेडर आपका स्टोर करना है जैसे आपका सोर्स एड्रेस क्या है, ठीक है, आपका डेस्टिनेशन एड्रेस क्या है, फिर कि आपने क्या आप बोल सकते हो कि कौन सा एरर कंट्रोल आप लगा रहे हो, या अगर आपने अपना आपका सी कभी कभी क्या होता है कि हमारा जो नेटवर्क होता है वो बहुत छोटा होता है, उसकी कैपेसिटी बहुत छोटी होती है और हमारा मैसेज बहुत ज्यादा बड़ा होता है। सो वी हैव टू डिवाइड आर, मतलब हम तो नहीं करते, दिस इज द वर्क ऑफ नेटवर्क लेयर, कि वो क्या करता है हमारे मैसेज को डिवाइड कर देता है इनटू सर्टेन स्मॉल स्मॉल सेगमेंट्स या इनटू सर्टेन सर्टेन स्मॉल स्मॉल पैकेट्स। तो क्या होता है कि ये इंफॉर्मेशन कि this data is not complete and it contains other information as well, जो बाद में आएगी, वो इंफॉर्मेशन भी कभी कभी हेडर में स्टोर होती है। तो अभी आई एम नॉट मूविंग इन वेरी डीप, अभी आप ये ध्यान रखो कि हर लेयर अपना हेडर ऐड करेगी, एंड दैट हेडर विल बी रिमूव्ड बाय ईच एंड एवरी पर्टिकुलर लेयर जब वो डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगा। ये चीज क्लियर हुई आपको? एनी डाउट अप टिल हियर? एनी डाउट? कोई डाउट है तो मुझे बताओ, I'll explain again. मैम मींस हम हेडर के थ्रू अपना मैसेज पास करा रहे हैं टू सिस्टम्स के बीच में। हेडर के थ्रू नहीं, हेडर के थ्रू नहीं हो बोलोगे आप, बट इट इज बेसिकली कि हेडर हर डेटा अपनी कुछ इंफॉर्मेशन जो है वो ऐड करती है, क्योंकि उसे डेटा में उसे जब वो मैसेज अपना, सपोज आप एप्लीकेशन लेयर पे हो, ठीक है, एप्लीकेशन लेयर से यू हैव टू सेंड द मैसेज टू प्रेजेंटेशन लेयर, तो वो कैसे इंफॉर्मेशन सेंड करेगी, सिर्फ डेटा सेंड नहीं कर सकती वो, सो व्हाट इट डज इज इट एड्स द फर्दर इंफॉर्मेशन कि किसको जाना है, किसने भेजा है, ये सारी चीजें तो एप्लीकेशन लेयर को ही पता है ना। अब मुझे बात बताओ, आपने डेटा भेजा एप्लीकेशन लेयर को, अब एप्लीकेशन लेयर ये वाली बात कैसे बताए फिजिकल लेयर को कि कहाँ इंफॉर्मेशन जानी है, कहाँ कैसे इंफॉर्मेशन सेंड होगी,
ये सारी बातें तो एप्लीकेशन लेयर को पता है ना कि सेंडर क्या है, रिसीवर क्या है। डेटा में तो ये सब मेंशन नहीं किया ना, डेटा तो आपका सिर्फ हाई है। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन की क्या, कैसे आपको डेटा सेंड करना है, किसे सेंड करना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ स्टोर होती है, दैट फॉर दैट यू हैव टू यूज दिस हेडर। सो अब एप्लीकेशन लेयर ने अपना एक हेडर ऐड कर दिया। सो दिस सेम इन्फॉर्मेशन, जो भी हेडर, हर लेयर के पास अपना एक हेडर होता है, उसमें कुछ अलग अलग फंक्शंस होते हैं, कुछ अलग अलग चीजें होती हैं हर हेडर की। तो फिर अपनी वो जो प्रेजेंटेशन लेयर है वो अपना एक हेडर ऐड कर देगी, प्लस आपका ये हेडर ऐसे ही यहाँ पे इंटैक्ट रहेगा। फिर आपका जो सेशन लेयर है वो इसी चीज को एज अ मैसेज ट्रीट करेगा। अब ये क्या, प्रेजेंटेशन लेयर के पास जब ये पार्ट गया पूरा, तो उसको लगेगा कि दिस इज द एंटायर मैसेज, ठीक है। सो इट विल ट्रीट दिस पार्ट एज अ मैसेज एंड इट विल ऐड अनदर हेडर जो उसका अपना हेडर होगा। बेसिकली क्या होगा कि हर लेयर अपना हेडर ऐड करती रहेगी, एंड देन जब वो दूसरे रिसीवर पे जाएगा तो उसको ये भी तो पता होना चाहिए ना कि मैं ही भेजा किसने है। अब इसे कैसे पता लगेगा कि ये मैसेज आया कहाँ से है? सो दिस इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन दी हेडर्स। बेसिक जो मैं आपको अभी समझाना चाह रही हूँ कि आप डेस्टिनेशन एड्रेस और सोर्स एड्रेस के बेसिस पे समझे। जब हम डिटेल में हेडर्स वाली चीज पढ़ेंगे तब आपको और क्लियर जाएगा कि और क्या क्या इन्फॉर्मेशन आप स्टोर कर सकते हैं। बेसिक अभी ये समझो कि हेडर्स में आपका ये स्टोर होगा कि आया कहाँ से है मैसेज। अब इसको कैसे पता कि ये मैसेज किसने भेजा है? Somebody has sent this message, but how he will know? So this type of information is stored in your headers plus some extra information जो आपको मैं आगे हम पढ़ेंगे further classes में। अब क्लियर हुई चीज? यस मैम। Yes, ma'am. कोई डाउट? किसी को कोई भी डाउट? No, ma'am. ठीक है। अब नेक्स्ट चीज जो हम, लेट्स स्टार्ट विद योर, एक एक लेयर को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आई हैव नॉट एडेड नोट्स बिकॉज इसमें बहुत सारी चीजें थी एंड ये हम डिटेल में वैसे भी पढ़ेंगे। सो आई जस्ट वांटेड टू गिव अ ब्रीफ ओवरव्यू आप लोगों को हर लेयर का, दैट इज व्हाई आई हैव नॉट एडेड। आई जस्ट सिंपली राइट जो भी मुझे इंपॉर्टेंट टर्म्स लगेंगे और फिर आई ट्राई कि वो आपको समझ में भी आ जाए, ठीक है। अगर आपको नोट्स चाहिए हो, मतलब इसके अलावा भी कुछ चाहिए तो मुझे बता देना, बट आई थिंक ये इससे ज्यादा का जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, बट लेट्स सी, ठीक है। अब यहाँ पे इसका जो मेन फंक्शन है वो क्या है? इसका जो मेन फंक्शन है आपका, इट इज दैट कि ये जो है अपना जो भी आप बोलते हो मैसेज, उसको बिट्स में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। फिजिकल लेयर क्या होगा? सी, ये तो आपको पता है ना कि जो नेट मशीन, जो कंप्यूटर में जो इन्फॉर्मेशन ट्रैवल होती है वो 0 और 1 के फॉर्म्स में होती है, राइट? मशीन लैंग्वेज है ना। और आप जो मैसेज भेजते हो वो किस में होता है? इंग्लिश फॉर्म में होता है, मतलब इंग्लिश अल्फाबेट्स यूज करता है। सो द लेयर जो आपके बिट्स को हेल्प करती है, जो बिट को ट्रैवल करने में हेल्प करती है, दैट इज योर फिजिकल लेयर, ठीक है। सो इसमें जो आपका जो यूनिट होता है, ये चीज बहुत ध्यान से याद रखना क्योंकि हर चीज में आपसे ये उसमें पूछ सकते हैं, व्हाट यू कैन से, मैच द फॉलोइंग में। फिजिकल लेयर में जो यूनिट होती है, जो डेटा की यूनिट होती है, उसे हम बोलते हैं बिट्स, ठीक है। इसको आप बेसिकली यूनिट नहीं, यूनिट की जगह हम बोलते हैं प्रोटोकॉल डेटा यूनिट, ठीक है। सो अभी मैं आपको बताती हूँ कि प्रोटोकॉल डेटा यूनिट क्या होता है। जस्ट वेट। सो दिस इज योर प्रोटोकॉल डेटा यूनिट, जिसे आप पीडीयू भी बोल सकते हो। ये यहाँ पे होती है आपकी बिट्स, ठीक है। अब प्रोटोकॉल डेटा यूनिट जो है बेसिकली इट इज कि अगर आप सोचो आपके कम्युनिकेशंस में जब भी आपको कोई भी सिंगल यूनिट, ठीक है, सिंगल यूनिट अगर आपको ट्रांसफर करनी है फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर, सो उसको आप बोलते हो प्रोटोकॉल डेटा यूनिट। यहाँ पे फिजिकल लेयर में हम जो भी इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर, उसको हम बोलते हैं बिट, मतलब बिट्स की फॉर्म में हम डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं। सो दिस इज नोन एज योर प्रोटोकॉल डेटा यूनिट, मतलब कि वो सिंगल यूनिट जो आप कम्युनिकेशंस में एक लेयर से दूसरी लेयर को सेंड कर रहे हो, ठीक है। अगर मैं एक फिजिकल लेयर है, ठीक है, और इसकी एक फिजिकल लेयर है एंड दे आर इंटरैक्टिंग विद ईच अदर, हर लेयर अपने लिए कुछ ना कुछ वर्ड, कुछ ना कुछ यूज करते हैं टू इंटरैक्ट विद इट्स पीयर लेयर। पीयर मतलब ये आपकी हो गई पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन, ठीक है। पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन हो जाएगा दो लेयर्स के बीच में, दैट इज फिजिकल टू फिजिकल, ठीक है। अगर ऐसे ही आपकी डेटा लिंक लेयर और डेटा लिंक लेयर जब आपस में इंटरैक्ट करेंगे, सो इट विल बी योर व्हाट, इट विल बी योर पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन। सो अब इसको जो आप, इसमें जो आप इंफॉर्मेशन जो यूज कर रहे हो एक दूसरे को शेयर करने के लिए, उसको आप बोलते हो प्रोटोकॉल डेटा यूनिट। और आपके
प्रोटोकॉल डेटा यूनिट ज्यादा कंफ्यूजन लग रहा है, सो बस इतना याद रखना कि फिजिकल लेयर में जो डेटा होगा इट इज ट्रीटेड इन द फॉर्म ऑफ बिट्स। तो यहाँ पे जो यूनिट है दैट इज योर बिट्स, ये चीज याद रखना। ये आपसे आई थिंक प्रीवियस किसी एग्जाम में उन्होंने पूछी भी थी मैच द फॉलोइंग के रिस्पेक्ट में, सो ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। सो इसका मेन फंक्शन क्या है? मेन फंक्शन इज टू कैरी, मैं यहाँ पे फंक्शन लिख देती हूँ, कैरी बिट स्ट्रीम ओवर अ फिजिकल मीडियम। ये तो हमने पढ़ा था कि ये प्योरली हार्डवेयर होती है, ठीक है। जो भी आपका फिजिकल मीडियम है, जो भी चैनल है, उसके थ्रू, उसकी हेल्प से इट कैरीज द बिट स्ट्रीम और इट ट्रांसफर्स द बिट स्ट्रीम फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर, ठीक है। फिर आपकी क्या आई, नेक्स्ट चीज क्या है? नेक्स्ट चीज जो ये डिफाइन करती है वो ये डिफाइन करती है ट्रांसमिशन मोड। ट्रांसमिशन मोड कैसा? कि जो आपका कम्युनिकेशन है दैट कम्युनिकेशन इज योर ड्यूप्लेक्स, सिंप्लेक्स और हाफ ड्यूप्लेक्स। तो वो ये डिसाइड करता है। ट्रांसमिशन मोड कौन डिसाइड करेगा? फिजिकल लेयर, कि सिंप्लेक्स होगा या हाफ ड्यूप्लेक्स होगा या फुल ड्यूप्लेक्स होगा, ये आपका डिसाइड होता है ट्रांसमिशन मोड से, ठीक है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट चीज फिजिकल लेयर डिसाइड करती है वो होती है आपकी डेटा रेट। डेटा रेट या फिर ट्रांसमिशन रेट, डेटा और ट्रांसमिशन रेट, ठीक है। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, जब भी रेट वर्ड आ जाता है ना तो इसका मतलब हो जाता है पर सेकंड, ठीक है। जब भी कहीं भी अगर आप ध्यान से देखो कहीं भी रेट अगर वर्ड आ जाए तो उसका ध्यान रखना कि उसका मतलब है पर सेकंड, ठीक है। सो डेटा और ट्रांसमिशन रेट क्या हुआ आपका? नंबर ऑफ बिट्स ट्रांसमिटेड, नंबर ऑफ बिट्स सेंट पर सेकेंड, मतलब एक सेकेंड में आप कितने बिट्स ट्रांसफर कर रहे हो फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर, ये भी आपका फिजिकल लेयर ही बताएगी। देन सिंक्रोनाइजेशन, इट ऑल्सो कीप्स अ चेक कि जो आपका सेंडर है एंड जो रिसीवर है उनकी जो क्लॉक्स है वो सिंक्रोनाइज, मतलब व्हाट डज इट मीन? इट सेज कि जो आपकी जो डिवाइस, मतलब जो भी आपके सेंडर और रिसीवर, जो भी आपका जिस भी टाइम जोन में आपके मैसेजेस को सेंड हो रहा है, जो भी उनकी क्लॉक है, टाइम जोन से मेरा मतलब जो उनकी क्लॉक है वो आपस में सिंक्रोनाइज रहनी चाहिए, ठीक है। सो सेंडर एंड रिसीवर्स बीच में सिंक्रोनाइजेशन रहे टाइप का, ठीक है। तो उनके मैसेजेस जो है वो आपस में सिंक्रोनाइज करें, सेंडर एंड रिसीवर्स। और इसको मैं अगर आपको डिटेल में बताऊं, सो एक मिनट मैम, सिंक्रोनाइजेशन मीन? बता रही हूँ, एक मिनट। एंड पीयर टू पीयर मीन्स? सिंक्रोनाइजेशन मतलब कि सी, अगर मैं आपको मतलब अगर इसमें क्या होता है कि यहाँ पे बेसिकली जब आप कोडिंग, मतलब आपकी जो भी जो आपकी फिजिकल लेयर है वो वर्क करती है इन द टर्म्स ऑफ योर वोल्टेज, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे जो आपकी ट्रांसमिशन होती है वो होती है कि वोल्ट्स के टर्म में होती है, ठीक है। सो यहाँ पे वो डिफाइन करता है कि अगर 1 है मेरा तो वो कितने वोल्ट्स का हो, कितने वोल्ट्स की वैल्यू होगी उसकी, अगर 0 है तो कितने वोल्ट्स की वैल्यू होगी। सो वो ये मेक श्योर करती है फिजिकल लेयर कि सेंडर और रिसीवर के जो बीच का जो लिंक है, जो भी उनका जो भी उनका इंटरेक्शन है वो सिंक्रोनाइज हो एक दूसरे से। मतलब ऐसा ना हो कि मतलब जो चीज सेंडर 1 के लिए बोल रहा है वो रिसीवर के लिए 0 हो, मतलब दैट इज व्हाट दे ट्राई टू कीप कि सेम बिट्स रखे और बिट लेवल पे भी सिंक्रोनाइजेशन रहे फिजिकल लेयर में, ठीक है। और पीयर टू पीयर बेसिकली क्या होता है कि पीयर मतलब होता है फ्रेंड, ठीक है। पीयर का बेसिक मीनिंग होता है फ्रेंड। सो अगर आप फिजिकल लेयर में हो, ठीक है, इफ यू आर एट फिजिकल लेयर एंड यू वांट टू इंटरैक्ट विद द अदर फिजिकल लेयर, आपने नेक्स्ट फिजिकल लेयर से इंटरैक्ट करना है, सो दिस विल बिकम योर पीयर टू पीयर, दिस इज योर पीयर टू पीयर कनेक्शन, कि एक फिजिकल लेयर दूसरे फिजिकल लेयर से इंटरैक्ट कर रही है, दिस इज योर पीयर टू पीयर कनेक्शन। एंड दिस पीयर टू पीयर कनेक्शन बेसिकली
कौन सी यूनिट में होता है, किस यूनिट के थ्रू होता है फिजिकल लेयर में, उसको हम बोलते हैं प्रोटोकॉल डेटा यूनिट। कि एक सिंगल यूनिट जो फिजिकल लेयर, एक फिजिकल लेयर से दूसरे फिजिकल लेयर में ट्रांसफर हो रही है, जो एक फिजिकल लेयर दूसरे फिजिकल लेयर से कम्युनिकेट करने के लिए, आप समझ लो कम्युनिकेट करने के लिए यूज कर रही है, वो सिंगल यूनिट को हम क्या बोलते हैं, दैट इज योर प्रोटोकॉल डेटा यूनिट। एंड इन केस ऑफ फिजिकल लेयर, दैट प्रोटोकॉल डेटा यूनिट इज व्हाट इट इज, योर बिट्स। अब ठीक है, एनी डाउट? फिर आपकी किस टाइप की टोपोलॉजी यूज हो रही है, वो भी आपका फिजिकल लेयर ही डिसाइड करती है, ठीक है। एंड योर लाइन कॉन्फ़िगरेशन, लाइन कॉन्फ़िगरेशन बेसिकली अगर आपसे वो पूछें तो ध्यान रखना कि लाइन कॉन्फ़िगरेशन से दे मीन योर पॉइंट टू पॉइंट और मल्टी पॉइंट। ये बेसिक वर्किंग्स हैं आपके फिजिकल लेयर की। कोई डाउट है इसमें आपको तो मुझे बताओ। No, ma'am. सी फिजिकल लेयर जो है आपकी वो वर्क करती है सबसे लोएस्ट लेवल पे, ठीक है। सो फिजिकल लेयर जो है वो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंटरफेसेस की यूज करती है। व्हाई? बिकॉज इट इज कम्प्लीटली हार्डवेयर। अगर वो कम्प्लीटली हार्डवेयर है तो उसका मतलब कहीं ना कहीं आर्किटेक्चर आपका यूज हो रहा है, आपका सिस्टम का आर्किटेक्चर यूज हो रहा है, ठीक है। और आपके जो भी आर्किटेक्चर है आपके सिस्टम का, वो बेसिकली किससे बना होता है, उसमें कुछ इलेक्ट्रिकल स्पेसिफिकेशंस होती हैं, कुछ मैकेनिकल जैसे आपकी इंटीग्रेटेड चिप्स हो गई, कुछ ऐसा कुछ होगा, ठीक है। सो उस केस में हम क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं वोल्ट का, ठीक है, दैट इज योर वोल्टेज, ठीक है। सो ये डिफाइन करती है फिजिकल लेयर कि आप 1 के लिए कितनी वोल्ट एनकोड करोगे और आप 0 के लिए कितनी वोल्ट एनकोड करोगे। ये चीज आपको क्लियर हो रही है? क्योंकि यहाँ पे हम कंप्लीटली बात कर रहे हैं हार्डवेयर लेवल के रिस्पेक्ट में, सो दैट इज वाई यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंटरफेस आएगा ही आएगा। और फिर आप कितनी वोल्टेज यूज कर रहे हो 1 के लिए और कितनी वोल्टेज आप यूज कर रहे हो 0 के लिए, बेसिकली एनकोडिंग हो गई है कि 1 के लिए आपने क्या रखा और 0 के लिए आपने क्या रखा। बिकॉज अब 1 0 अगर आप भेज रहे हो, सो दिस इज बेसिकली कि आप 1 0 तो आपने भेजा, बट बेसिकली कोई एक वोल्ट टाइप का चीज होगी ना, क्योंकि हार्डवेयर के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हो। सो दैट इज वाई यहाँ पे आपकी जो फिजिकल जो आपकी बात हो रही है वो ये है कि 1 के लिए आपने कितनी वैल्यूज एनकोड करी है, कितनी वोल्टेज एनकोड करी है, और 0 के लिए आपने कितनी वैल्यू या कितनी वोल्टेज एनकोड करी है, वो आपकी सेंडर और रिसीवर साइड पे सेम ही होनी चाहिए। ये आपका सिंक्रोनाइजेशन हो गया। और फिर जो नेक्स्ट चीज हो गई वो ये हो गई कि ट्रांसमिशन मोड क्या है, डेटा ट्रांसमिशन रेट क्या है, टोपोलॉजी क्या है, लाइन कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ये सब चीजें आपकी बाकी सभी फिजिकल लेयर ही डिफाइन करती है। एनी डाउट? कुछ भी डाउट है तो बताओ मुझे, कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ प्रॉब्लम हो रही है, कुछ इशू हो रहा है तो बताओ। हाँ Ma'am, please repeat once protocol data unit. सी प्रोटोकॉल डेटा यूनिट इज जस्ट सिंपली कि आप एक उस पे कितना, एक सिंगल यूनिट को जो आप ट्रांसमिट कर रहे हो उसको आप बोलते हो प्रोटोकॉल डेटा यूनिट, ठीक है। इसकी अगर मैं आपको डेफिनेशन बताऊं तो इट इज protocol data unit is a single unit of information transmitted among the layers of a computer network, ठीक है। सो अ PDU, that is a protocol data unit, is composed of protocol specific control information and user data। मतलब कि प्रोटोकॉल डेटा यूनिट में आपका वो इंफॉर्मेशन स्टोर होती है कि एक सिंगल यूनिट में एक लेयर जो है वो क्या सेंड कर रही है अपनी पीयर लेयर को, मतलब वो हाउ दे आर इंटरेक्टिंग विद ईच अदर। एक सिंगल यूनिट में अगर मैं बात करूं कि फिजिकल लेयर जो है एक सिंगल यूनिट में क्या सेंड कर रही है, सो वो सेंड करती है एक बिट। सो दैट इज व्हाई फिजिकल लेयर का प्रोटोकॉल डेटा यूनिट जो हो जाएगा वो हो जाएगा बिट्स। अब ठीक हुआ? सो प्रोटोकॉल डेटा यूनिट बेसिकली कि फिजिकल लेयर्स इंटरेक्ट कैसे कर रहे हैं, किस वर्ड, जैसे हर किसी की यूनिट होती है ना बेसिकली, तो फिजिकल लेयर की वो यूनिट है बिट्स। क्लियर हुई? Yes, ma'am. ठीक है। अब नेक्स्ट आया आपका जो है डेटा लिंक लेयर, ठीक है। डेटा लिंक लेयर जो होता है इट इज जस्ट अबव योर, ओके एक मिनट, डेटा लिंक लेयर हुई आपकी जस्ट अबव योर फिजिकल लेयर, ठीक है, दैट इज योर लेयर 2। सो इसमें क्या क्या होगा, अब आपकी चीजें बाकी सब तो फिजिकली डिसाइड करती, बट व्हाट इज द वर्क ऑफ योर
डेटा लिंक लेयर, डेटा लिंक लेयर में क्या होता है, डेटा लिंक लेयर में ये चीज होती है कि आपका नेटवर्क लेयर से इंफॉर्मेशन आई डेटा लिंक लेयर पे, ठीक है, एंड फिर वो वहां से चली जाएगी फिजिकल लेयर पे, दिस इज एट द सेंडर साइड। हाँ जी, peer-to-peer connection is happening on the physical layer. नहीं समझ में आ रहा क्या कह रहे हो? ठीक है, सो दिस इज फ्रॉम नेटवर्क लेयर टू फिजिकल लेयर, जब ये सेंडर साइड पे है। और रिसीवर साइड पे क्या होगा, रिसीवर साइड पे ये होता है कि फिजिकल लेयर से मैसेज जाएगा डेटा लिंक लेयर पे, और डेटा लिंक लेयर का वर्क है कि वो उसे नेटवर्क लेयर पे सेंड कर दे, दिस इज एट योर रिसीवर साइड। ठीक है, सो इसमें जो आपकी प्रोटोकॉल डेटा यूनिट होती है डेटा लिंक लेयर पे, दैट इज योर फ्रेम्स। ठीक है, रिमेंबर दिस, डेटा लिंक लेयर जो है वो फ्रेम्स के रिस्पेक्ट में बात करती है। ठीक है, इट टॉक्स इन विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम्स। महेश कुछ कह रहे थे आप? नहीं, अब मुझे नहीं आवाज आ रही है। Once you check chart, ma'am. Already I typed in chart. सॉरी, Check chart, ma'am. माय डाउट, आपने लिखा है मैम माय डाउट चार्ट, ये लिखा है आपने? अच्छा, आपने कुछ डाउट पूछा है क्या? ओके, एक मिनट, ओके मैम, पीयर टू पीयर कनेक्शंस हैपेंड विद ओनली फिजिकल लेयर, राइट? सी, ओके, आई गॉट योर डाउट। इसमें क्या होता है बेसिकली, जो आपका जो पीयर टू पीयर प्रोटोकॉल्स होते हैं वो आपके होता है इन योर, जो भी आप वैसे तो हर लेयर के बीच में हो सकता है, बट सॉफ्टवेयर जो लेयर्स हैं आपके, ठीक है, सॉफ्टवेयर लेयर्स जो हैं आपकी, एक आपकी हो गई योर एप्लीकेशन लेयर, ठीक है, फिर आपकी क्या हो गई, एप्लीकेशन लेयर हो गई, फिर आपकी सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन मतलब ये ऊपर नीचे हो गया, ठीक है, और आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर। इनके बीच में आपकी पीयर टू पीयर कम्युनिकेशंस होती हैं, ठीक है, बिकॉज दे आर योर सॉफ्टवेयर लेयर्स। बट हमने क्या किया है, वी हैव डिसाइडेड कि हम हर यूनिट के लिए, हर डेटा लिंक लेयर के लिए एक यूनिट डिसाइड, हाँ सॉरी, हर OSI मॉडल की जो लेयर है उसके लिए एक यूनिट डिसाइड करेंगे। एंड व्हाट हैपेंस इज बेसिकली, जब आप इंटरैक्ट करते हो, जब आपकी जो प्रोटोकॉल्स हैं वो इंटरैक्ट करती हैं फ्रॉम, एक मिनट, या सी, सो ये तो आपकी हो गई पीयर टू पीयर इंटरैक्ट, ये तो आपकी करेंगी पीयर टू पीयर इंटरैक्ट बिकॉज दीज आर योर सॉफ्टवेयर लेयर्स। लेकिन क्या होता है कभी कभी, एक तो आपका फिजिकल लेयर भी आपस में इंटरैक्ट करता है, व्हाई, बिकॉज वो उसमें आपका बेसिक इंटरैक्शन होता है। सो ये तो आपका हो गया बिट के फॉर्म्स में, ठीक है। बट अब आपकी जो डेटा लिंक लेयर है वो भी यूनिट यूज करेगी, दैट यूजेस अ यूनिट टू सेंड इट, ठीक है। हर लेयर की अपनी एक यूनिट है कि किस तरीके से वो अपना डेटा सेंड करेगी। सो जो डेटा लिंक लेयर है, यहाँ पे जो आपकी डेटा यूनिट है, डेटा यूनिट की तरीके से समझो, वो डेटा यूनिट हो गई आपकी फ्रेम। यहाँ पे आपकी उस डेटा यूनिट को हम बोलते हैं फ्रेम्स, ठीक है। सो अब वो डेटा लिंक लेयर जो है, अगर वो फिजिकल लेयर को भी अपना इंफॉर्मेशन सेंड कर रही है, अब कैसे होगा, यहाँ से डेटा लिंक लेयर ने अपना एक हेडर ऐड किया, ठीक है, और फिर उसने बाकी की इंफॉर्मेशन को ऐसे रखा, फिर वो गई फिजिकल लेयर पे, फिजिकल लेयर ने यहाँ की फिजिकल लेयर से इंटरैक्ट किया, और यहाँ की डेटा लिंक लेयर ने जब वो हेडर खोला, हेडर 2, सो इट विल कम टू नो कि ओके, जो ये हेडर है, हेडर 2, ये डेटा लिंक लेयर का है फ्रॉम दैट डिवाइस, और वो अपनी इंफॉर्मेशन मुझे सेंड कर रही है, एंड उसमें जो उसने इंफॉर्मेशन सेंड करी है वो आपकी इस डेटा लिंक लेयर की हेल्प के लिए काम आएगा, मतलब डेटा लिंक लेयर यहाँ पे इसे यूज करेगा। सो डेटा लिंक लेयर जो अपनी इंफॉर्मेशन स्टोर करता है, वो स्टोर करता है इन फॉर्म ऑफ फ्रेम्स, फिजिकल लेयर स्टोर करता है इन फॉर्म्स ऑफ बिट, और बाकी सारी यूनिट्स का भी अपना अपना डेटा यूनिट है जो हम आगे धीरे धीरे पढ़ेंगे। क्लियर? सी, रुको, एक चीज मैं आपको समझाती हूँ, अगर डाउट हो रहा है तो एक मिनट रुको, जस्ट वेट। एक मिनट, हाँ,
यहाँ पे समझो, उसको समझ में आएगा क्लियर। यहाँ पे देखो, ये आपकी OSI मॉडल है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, पीयर टू पीयर प्रोसेसेस होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप समझो इसे, जो आपकी फिजिकल लेयर है, क्या बोल रहा है वो कि जो फिजिकल लेयर है वो कम्युनिकेशन वहां पे डायरेक्ट हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप फिगर देखो यहाँ वाला, सो ए जो है, ए डिवाइस जो है वो अपनी कुछ जो इंफॉर्मेशन है वो भेज रहा है बी को, ठीक है। अब कैसे भेज रहा है वो, इन लेयर्स की हेल्प से। यहाँ पे बीच में कुछ नोड्स हैं, जैसे आपके राउटर्स हो गए, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, एट हायर लेयर्स however communication must move down through layers on device A to device B and then back up through the layers. Each layer in the sending device adds its own information to the message it receives from the layer just above and passes the whole package to the layer just below it. ये वाली चीज क्लियर हुई? इतना पॉइंट क्लियर हुआ? ये तो वही चीज है कि हर लेयर जो है अपनी कुछ इंफॉर्मेशन हेडर के फॉर्म में ऐड कर रही है और वो अपनी जो लोअर लेयर्स है उन्हें वो इंफॉर्मेशन दे रही है। इतना क्लियर हुआ? यस मैम। ठीक है, फिर वो क्या बोल रहा है, एट लेयर 1 दैट इज योर फिजिकल लेयर entire package is converted to a form that can be transmitted to the receiving device. ठीक है, at the receiving machine the message is unwrapped layer by layer with each process receiving and removing the data meant for it. ठीक है, सो ये चीज तो आपकी यही बताई उन्होंने कि जो आपके हेडर्स थे, उन्होंने हेडर्स को वो हर लेयर अपना जो पर्टिकुलर हेडर है उसे रिमूव करती है एंड देन उसको जो भी उसमें इंफॉर्मेशन उसकी स्टोर होती है वो उसे यूज कर लेते हैं। ये चीज तो क्लियर है। जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया है कि लेयर 2 जो है वो रिमूव करती है डेटा मेंट फॉर इट, देन पासेस द रेस्ट टू द लेयर 3। फिर लेयर 3 अपना जो डेटा दैट इज जो हेडर, यहाँ पे वो हेडर की बात करें, लेयर 3 अपना हेडर रिमूव कर देते हैं और बाकी की लेयर जो बाकी की लेयर्स है उन्हें वो आगे ट्रांसफर कर देते हैं। ये चीज क्लियर हुई इतनी? ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दे आर टॉकिंग अबाउट द इंटरफेस, द पासिंग ऑफ डेटा एंड नेटवर्क इंफॉर्मेशन डाउन थ्रू द लेयर्स ऑफ सेंडिंग डिवाइस एंड बैकअप through the layers of receiving device is made possible by an interface between each pair of adjacent layers. ठीक है, फिर each interface defines the information and services a layer must provide for the layer above it. So well defined interfaces and layer functions provide modularity to a network. As long as the layer provides the expected services to the layer above it, the specific implementation of its function can be modified or replaced. इसका बेसिक मतलब वही है जो मैंने आपको समझाया इंटरफेस का, कि वो क्या स्टोर करती है, इट स्टोर्स द इंफॉर्मेशन कि आपके जो लेयर के जो फंक्शंस है वो कैसे होंगे। इट इज ईच इंटरफेस डिफाइंस द इंफॉर्मेशन एंड सर्विसेज अ लेयर मस्ट प्रोवाइड फॉर द लेयर अबव इट। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई? इंटरफेस वाली चीज क्लियर हो गई? यस मैम। ठीक है, अब आपका जो नेक्स्ट आया वो आप पूछ रहे हो पीयर वाला। ठीक है, तो जस्ट वेट, इसमें कहीं पीयर भी था, यहाँ पे आओ। अब within a single machine, each layer calls upon the services of the layer just below it. Layer 3, for example, uses the services provided by layer 2 and provides services for layer 4. ठीक है, so between machines, layer X on one machine communicates with layer X on another machine. So यहाँ पे क्या बोल रहे हैं वो कि हर मशीन्स में भी जो लेयर्स हैं बिटवीन मशीन्स के बीच में भी अगर लेयर X है किसी मशीन में, सो वो अगर कम्युनिकेट कर रही है लेयर X ऑन दी अनदर मशीन, मतलब सेम मशीन में, सो उसको आप बोलते हो पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन। ठीक है, सो दिस कम्युनिकेशन जो ये मशीन्स बिटवीन टू डिफरेंट मशीन्स जो लेयर X से कम्युनिकेट कर रही है, दिस कम्युनिकेशन इज गवर्न्ड बाय एन अग्रीड अपॉन सीरीज ऑफ रूल्स, जिसको आप प्रोटोकॉल्स बोलते हो। ठीक है, सो द प्रोसेसेस ऑन ईच मशीन दैट कम्युनिकेट एट अ गिवन लेयर आर कॉल्ड पीयर टू पीयर प्रोसेसेस। means peer-to-peer process work on every layer. हाँ देखो, यहाँ पे उन्होंने लिखा है लेयर X, ठीक है, लेयर X उन्होंने बोला है, अब उन्होंने मेंशन नहीं किया कि कौन सी स्पेसिफिक लेयर है, बट इन द डायग्राम इफ यू सी दिस दे हैव क्लियरली गिवन कि यहाँ पे जो पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन हो रहा है वो कौन सी लेयर्स के बीच में हो रहा है, वो हो रहा है आपका 6th 5th 4th, आपका ये 7th 6th 5th एंड 4th। ठीक है, अब नेटवर्क और डेटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर तो डायरेक्टली आपके आपस में कनेक्टेड है, डेटा लिंक लेयर और नेटवर्क लेयर
हो सकता है कि वो आपस में पीयर टू पीयर कम्युनिकेट करें, हो सकता है ना करें, बट आपकी जो ये लेयर्स है दैट इज योर ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन, ये आपकी कौन सी लेयर्स है? ये आपकी सॉफ्टवेयर लेयर्स। तो सॉफ्टवेयर लेयर्स हो सकता है कि विद द हेल्प ऑफ सर्टेन प्रोटोकॉल्स वो आपस में लेयर जो है इंटरेक्ट कर ले, ठीक है। Means ma'am mandatory 4 layer, 5 layer, 6 and layer 7, but it is हाँ not, may be mandatory or may not be. हाँ, मतलब कि जो आपका पीयर 1 टू 2 पीयर, 3 4. हाँ जो वन तो है ही, देखो वन तो आपका फिजिकल लेयर है, वो तो डायरेक्टली इंटरेक्ट करती ही है, वो तो डायरेक्टली कनेक्टेड है। फिजिकल लेयर्स के बीच में तो डायरेक्ट कनेक्शन है ना, बिकॉज वे लोग तो कनेक्टेड है, तभी तो आपका मैसेज किसी भी ट्रांसमिशन मीडियम के थ्रू या कोई भी आपका मीडिया जो भी है उसके थ्रू फिजिकल लेयर्स तो कनेक्टेड है। बट आपका डेटा लिंक लेयर और नेटवर्क लेयर मैसेज सेंड कर रहे हैं टू द अबव लेयर्स और डाउन लेयर्स, ठीक है, जो आपके उसके ऊपर है या उसके नीचे। बट अब इनकी आपस में बीच में कुछ कनेक्शन हो रहा है कि नहीं, वो जब आप धीरे धीरे आगे का आप मैटर पढ़ोगे तो आपको और क्लियर होगा कि अगर डेटा लिंक लेयर आपस में इंटरेक्ट करती है तो कैसे होता है, अगर नहीं करती है, नेटवर्क लेयर आपस में इंटरेक्ट करती है तो कैसे होती है। बट ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर, ये लेयर्स हैं आपकी सॉफ्टवेयर लेयर्स। तो ये तो आपस में इंटरेक्ट करेंगी, और अगर वो इंटरेक्ट करती हैं सो दैट इज योर पीयर टू पीयर प्रोटोकॉल। अब क्लियर हुआ? Yes ma'am. कोई डाउट इसमें? No, ma'am. है तो पूछ लो, क्लियर कर दूंगी मैं। अभी अब मैंने बुक ओपन कर लिया, सो आई क्लियर इट, क्लियर डाउट्स फ्रॉम हियर ओनली। कुछ भी डाउट है तो पूछ लो, ठीक है। पीयर बेसिकली जो होता है ना, पीयर मींस होता है फ्रेंड, मतलब कि सेम ही जो होता है। सो दैट इज व्हाई दे आर यूजिंग पीयर टू पीयर व्हेन दे टॉकिंग अबाउट कि एक लेयर उसी लेयर से दूसरे डिवाइस में उसी लेयर से जब इंटरेक्ट कर रही है, तो दैट इज योर पीयर टू पीयर। चलो फिर मैं यहीं से आपको पढ़ा देती हूँ तो आपको और क्लियर रहेगा, ठीक है। बाकी मैं ये सब हाँ Ma'am, is there any other connection except peer-to-peer? पीयर नहीं, फिलहाल तो पीयर टू पीयर ही है। बाकी आपका कुछ अगर आगे आपको कुछ नया मिलेगा तो, बिकॉज अभी से सब कुछ अगर मान लो, बिकॉज हो सकता है कि हो सकता है ना भी हो, तो इट्स नॉट यूज। वैसे तो पीयर टू पीयर के अलावा एक आपका जो होता है दैट इज योर नेटवर्किंग के टाइप्स आ जाएंगे उसके बाद, बट जो कनेक्शन है दो लेयर्स के बीच में दैट इज योर पीयर टू पीयर ओनली। मैं आपको एक और टर्म बता देती हूँ पीयर टू पीयर के लिए और क्लियरली समझाने के लिए। चलो मैं देखूंगी फिर उसे बताती हूँ, ठीक है। और ये आपका ये डायग्राम हो गया जो मैं आपको समझा रही थी कि ये आपका डेटा आया, फिर एप्लीकेशन लेयर ने अपना एक हेडर ऐड कर दिया, फिर उसके बाद ये पूरा हो जाएगा मैसेज डेटा 6 दैट इज योर प्रेजेंटेशन लेयर के लिए, और फिर वो अपना हेडर ऐड कर देगा। उसके बाद डेटा 5 के लिए ये पूरा एंटायर मैसेज हो जाएगा और हेडर अपना वो ऐड कर देगा। ये चीज तो क्लियर है ना आपकी? और ये आपकी ट्रांसमिशन मीडियम हो गया, ये चीज क्लियर है? इसमें तो कोई डाउट नहीं था ना? No. ठीक है। इसके बाद अब आपका आया OSI मॉडल में आपका फिजिकल लेयर तो हमने कर लिया, ठीक है। फिजिकल लेयर में आपकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो भी हमने पढ़ लिए हैं। जो नेक्स्ट आया आपका डेटा लिंक लेयर। अब डेटा लिंक लेयर बेसिकली आपकी जो फंक्शनैलिटीज होती है इसमें आपका जो यूनिट होती है वो होती है फ्रेम्स, ठीक है। वो होती है क्या? फ्रेम्स होती है वो। उसके बाद जो अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है? पहली तो होगी फ्रेमिंग, मतलब कि क्या, जो भी आपकी बिट्स रिसीव हुई है नेटवर्क लेयर से, जो भी आपका मैसेज रिसीव हुआ है वो उसे जो मैंने एक मैनेजेबल डेटा यूनिट में बना देता है दैट इज योर फ्रेम्स, ठीक है। सो डेटा लिंक लेयर डिवाइड्स द फ्रेम स्ट्रीम ऑफ बिट्स रिसीव्ड फ्रॉम द नेटवर्क लेयर इनटू मैनेजेबल डेटा यूनिट्स कॉल्ड फ्रेम। फिर इसमें एक पॉइंट आया आपका फिजिकल एड्रेसिंग का। सो व्हाट इज फिजिकल एड्रेसिंग? फिजिकल एड्रेसिंग में क्या है कि इफ फ्रेम्स आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू अ डिफरेंट सिस्टम, मतलब कि मान लो आपको अपना जो फ्रेम है वो दूसरे सिस्टम पे सेंड करना है, ठीक है, लेकिन नेटवर्क सेम है, तो आपका आएगा क्या? आएगा आपका डेटा लिंक लेयर। ध्यान देना मेरी बात को, व्हाट आई एम सेइंग, इफ फ्रेम्स आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू डिफरेंट सिस्टम ऑन द नेटवर्क, the data link layer adds a header to the frame to define the sender or receiver of the frame. If the frame is intended for a system outside the sender's network, the receiver address is the address of the device that connects the network. Now, what they mean here is, try to understand this point. यहाँ पे क्या बोल रहे हैं वो कि अगर आपका नेटवर्क सेम है, ठीक है, मतलब इफ योर एक मिनट, क्या बोलेगा, विजिबल है? स्क्रीन विजिबल है ना?
Yes, ma'am. ठीक है, यहाँ पे वो बोल रहे हैं अगर सपोज आपका एक ये ए है और एक ये बी है, ठीक है, दिस इज योर वन नेटवर्क. Ma'am, PDF screen is visible only. पीडीएफ स्क्रीन ओके. सपोज ये आपका ए और बी एक सेंडर डिवाइस, वो है आपका सेंडर रिसीवर, और ये आपका नेटवर्क है, ठीक है, दिस इज योर नेटवर्क वन. ओके, अब यहाँ पे अगर ए और बी अपने मैसेजेस को सेंड कर रहे हैं, इफ ए इज सेंडिंग मैसेज टू बी, सो यहाँ पे जो फ्रेम डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है वो क्या हो रहा है, सिस्टम तो अलग अलग है बट नेटवर्क सेम है. सो उसमें क्या करेगा, डेटा लिंक लेयर ऐड करेगा एक हेडर जो डिफाइन करेगा सेंडर को और रिसीवर को. सिंपल, ठीक है, ये चीज क्लियर हुई. बट अगर मान लो ए यहाँ पे है एक नेटवर्क वन में और ये आपका कोई नेक्स्ट नेटवर्क है नेटवर्क टू, और यहाँ पे उसे मैसेज सेंड करना है इस सी को, और यहाँ पे आपके क्या हो गए, नेटवर्क्स अलग हो गए. तो जो फ्रेम है आपका, जो डेटा लिंक लेयर है, वो फ्रेम में क्या ऐड करेगा, वो ऐड करेगा रिसीवर का एड्रेस. और रिसीवर का एड्रेस क्या होगा, वो एड्रेस होगा कि वो उस डिवाइस का जो उस नेटवर्क से कनेक्ट कर रही है. मतलब कि अच्छा, ये तो आपको पता होगा ना कि अगर एक नेटवर्क से हम दूसरे नेटवर्क को कनेक्ट करते हैं तो हमें क्या जरूरत होती है, बीच में राउटर की जरूरत होती है. ठीक है, अगर हम एक नेटवर्क को दूसरे नेटवर्क से कनेक्ट कर रहे हैं, सो व्हाट वी रिक्वायर अ राउटर. ओके, सो क्या होगा कि ये जो आपका राउटर है इसका भी अपना एक फिजिकल एड्रेस, एक एड्रेस होगा, आईपी एड्रेस बोल लो, ठीक है, इस राउटर का भी अपना एड्रेस होगा. सो अगर ए और सी को आपस में इंटरेक्ट करना है, इफ ए वांट्स टू इंटरेक्ट विद योर सी, सो व्हाट इट विल डू, यहाँ पे फ्रेम में द फ्रेम इज इंटेंडेड फॉर अ सिस्टम आउटसाइड द सेंडर्स नेटवर्क. रिसीवर एड्रेस, जो यहाँ पे रिसीवर एड्रेस क्या होगा, वो होगा उस डिवाइस का एड्रेस, इस डिवाइस का एड्रेस जो उससे कनेक्ट करेगी नेक्स्ट वन से. देखो, एप्लीकेशन लेयर पे क्या होगा, एप्लीकेशन लेयर पे होगा सेंडर का एड्रेस और रिसीवर का एड्रेस. ठीक है, रिसीवर क्या, सेंडर हो गया आपका ए और रिसीवर हो गया आपका सी. ठीक है, बट अब जब आप डेटा लिंक लेयर पे आओगे, सो डेटा लिंक लेयर को ये पता लग गया कि ये जो नेटवर्क है, हमारा ए और सी का, वो अलग है. द नेटवर्क बिटवीन ए एंड सी इज डिफरेंट. सो व्हाट इट विल डू, अब वो क्या बोलेगा कि वो करेगा, ठीक है, सेंडर का एड्रेस तो ए का ही रहेगा, बट जो रिसीवर का एड्रेस हो जाएगा वो हो जाएगा इस राउटर का. ठीक है, जो रिसीवर का एड्रेस होगा वो इस राउटर का हो जाएगा. फाइनल जो आपका हेडर 7 है, हेडर 7 जो था, दैट इज योर हेडर ऑफ एप्लीकेशन लेयर, उसमें आपका फाइनल डेस्टिनेशन एड्रेस क्या मांग है, सी मांग है. बट डेटा लिंक लेयर पहले क्या करेगा, पहले वो इससे ए से जाएगा यहाँ राउटर पे, फिर ये राउटर जो है इसे कहाँ फॉरवर्ड करेगा, इसे फॉरवर्ड करेगा सी पे. ये चीज क्लियर हुई आपको? क्लियर हुआ, नहीं हुआ? अगर नहीं हुआ है तो बोलो तो सही. Clear, ma'am. किसी को भी कोई डाउट है तो दोबारा पूछ लो, मैं बता दूंगी. इतने लेट रिस्पॉन्स आया मतलब नहीं क्लियर हुआ है. क्या नहीं क्लियर है बताओ तो. बताओ. Ma'am, layer, how can layer identify that which part is header and which part is data? How can differentiate between this? मतलब मतलब आपने जो पिक्चर ड्रॉ किया ना, हेडर फर्स्ट लेयर का हेडर के बाद वो अपना खुद का हेडर ऐड कर रहा है, तो कैसे पता चलेगा जो the before header is finished up to this portion, next my header will added in this here. हर हेडर की कुछ बिट्स होती हैं. ठीक है, हर हेडर जो है वो एक पर्टिकुलर, अगर हेडर 2 है सो इट इज ईदर ऑफ 16 बिट्स और 8 बिट्स और 32 बिट्स. ठीक है, सो वो उसको पहले से प्री डिफाइंड होता है वो फॉर्मेट कि मेरा हेडर जो है वो इतने बिट्स का है.
ठीक है। सो उसके बाद हर लेयर को पता होता है कि जो इट इज अ बेसिक वर्किंग, कि हर लेयर को पता है कि मेरा जो हेडर है वो इतने बिट का है, जो नेक्स्ट लेयर को पता होगा कि मेरा हेडर इतने बिट का है। सो इसलिए व्हाट इट विल डू इज कि जो भी उसको ऊपर से हेडर मिलेगा, व्हाटएवर हेडर जो H7 का हेडर था, H7 और D7 ये आपका डेटा था, ठीक है। सो दिस एंटायर, ये पूरा जो है ये वर्क करेगा एज डेटा फॉर योर लेयर 6। तो ये आपका डेटा हो गया 6 लेयर का, और ये आपका रहा हेडर, दैट इज योर हेडर 6। अब जब ये गया आपके रिसीवर साइड पे, सो हेडर 6 दैट इज योर प्रेजेंटेशन लेयर को बहुत अच्छे से पता है कि ये जो मेरा हेडर है उसके जो फर्स्ट कुछ बिट्स हैं, क्योंकि आपके ये जो मैसेज होगा ये कुछ बिट्स का होगा, so he knows that my header is of suppose करो 20 bits का है अगर, so what it will do, it will take the first 20 bits and it will say that this is my header and इतने पे वो वर्क करेगा, बाकी जो है वो पूरा डेटा है and I don't need that data, वो मेरे से मतलब नहीं है, मेरा सिर्फ ये हेडर से रिलेटेड रिलेशन है and this is what the 20 bits, the first 20 bits are my header। अब क्लियर हुआ? यस मैम। और कोई किसी को डाउट? मुझे बताओ समझ क्या नहीं आ रहा है, क्या समझ नहीं आ रहा, क्या डाउट आ रहा है, पहले मुझे बताओ। तो आप लोग कुछ बोल ही नहीं रहे हो, मैंने 2 बार पूछा तब जाके एक डाउट आया कि मैम ये डाउट है। क्लियर मैम। मुझे तो नहीं लग रहा, आप लोग इतने ऐसे, मैं पूछ रही हूँ समझ में आ रहा है, कोई कुछ बोल नहीं रहा है, फिर दोबारा पूछू समझ में आ रहा है, नहीं समझ में। अगर सी आई हैव ट्राइड दिस न्यू थिंग कि मैं पीपीटी ना बना के खुद से पढ़ाऊं, ठीक है, बट अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आ रही तो आप मुझे बोल दो, आई विल जस्ट चेंज इट। मैंने सिर्फ इसलिए किया जिससे कि मेरे पास नोट्स थे तो आपको क्लियर समझ। अगर इसमें कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, सो फ्रॉम टुमारो आई जस्ट मेक द पीपीटी अगेन एंड हम वैसे कंटिन्यू कर लेंगे, सब कंटिन्यू कर रहे थे, कोई इशू नहीं है इसमें, बट एटलीस्ट बी वोकल, अपनी बात बोलो। तो जो भी दिक्कत है आपको वो मुझसे बोलो, आप लोग, आप बोलते नहीं हो, फिर कुछ और ही, फिर मतलब मुझे लगता है कि ठीक है समझ में आ रहा है, बट फिर पता लगता है कि बच्चों को समझ ही नहीं आ रहा है। नो मैम क्लियर। बाकी कोई भी डाउट है प्लीज, कोई भी डाउट है तो अपना क्लियर मुझसे बोलो एटलीस्ट, ठीक है। सो ये चीज हो गई आपकी डेटा लिंक क्लियर की, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब व्हाट आई विल डू टुमारो, हम क्या करेंगे कि आई विल मेक द पीपीटी अगेन, ठीक है, मैं पूरी पीपीटी बनाऊंगी इसे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ऐसे कुछ फायदा होने वाला है। सो व्हाट वी विल डू इज वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर ओनली, दैट इज द डेटा लिंक क्लियर, ठीक है। मैं सारी जो अभी आपका प्रीवियस जो भी चीज थी वो भी ऐड कर लूंगी उसमें, जिससे कि क्लियरली आपको ये ऐड हो जाएगा, तो आप अच्छे से पढ़ोगे तो बहुत समझ में भी आ जाएगा, ठीक है। जो भी मुझे लगेगा जरूरी डायग्राम्स हैं, एक बार आप चाहो ना तो ये वाली बुक है डेटा कम्युनिकेशन की, डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग बाय बहरोज ए फरोजन, ठीक है। ये फरोजन इज ही इज द इन्होंने बुक लिखी है, ठीक है, FOROZAUN। सो ये वाली बुक आप चाहो तो पीडीएफ डाउनलोड कर लो, इट विल हेल्प यू अ लॉट। ओके ओके मैम। मैम एडिशन, कोई भी एडिशन कर लो, सेम एडिशन से यार, 5 4 5 वैसे तो 5 भी आया शायद, बट 5 अवेलेबल नहीं है पीडीएफ के फॉर्म में, 4th ही अवेलेबल है, 4th ही आप डाउनलोड कर लो, ठीक है। तो उससे आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। और बाकी कल जो है आई ट्राई कि हम ये वाला नेटवर्क मॉडल्स का पार्ट खत्म कर लें, और आज आपको फिजिकल लेयर और बेसिक ओएसआई मॉडल समझ में आ गया कि नहीं, इतना बताओ बस मुझे। फिजिकल लेयर और हेडर का क्या काम है, मैसेज आपका एप्लीकेशन लेयर से नीचे कैसे ट्रैवल करता है, किस बेसिस क्या ट्रैवल करने का क्या तरीका है, फिर वो बाकी रिसीवर साइड पे कैसे जाता है, ये सब क्लियर हुआ कि नहीं? यस मैम। कोई डाउट इससे रिलेटेड, कोई डाउट है तो बताओ। नो ठीक है, मैं एक बार आपको एक बेसिक वो दे देती हूँ ओवरव्यू कि कैसा होता है, ठीक है। जस्ट वेट, सपोज आपके जो सबसे पहली लेयर है एप्लीकेशन लेयर, ठीक है, फिर है आपकी प्रेजेंटेशन लेयर, फिर है आपकी सेशन लेयर, फिर है आपका ट्रांसपोर्ट लेयर, फिर नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर, ठीक है। तो फिजिकल लेयर पे जो आपकी यूनिट है, जो डेटा यूनिट है, डेटा यूनिट से याद रखो, आपको उससे इजी लगेगा। जो आपकी फिजिकल लेयर की डेटा यूनिट है उसे आप बोलते हो बिट्स, ठीक है। डेटा लिंक लेयर की जो फिजिकल यूनिट, जो सॉरी यूनिट है, डेटा यूनिट, उसे आप बोलते हो फ्रेम्स, मतलब कि वो डेटा ट्रांसफर करती है फ्रेम्स के फॉर्म में।
ठीक है। फिर जो आपकी नेटवर्क लेयर है, नेटवर्क लेयर ट्रांसफर करती है डेटा पैकेट के फॉर्म में। ट्रांसपोर्ट लेयर डेटा को ट्रांसफर करती है सेगमेंट के फॉर्म में। ठीक है। फिर आपके सेशन लेयर हो गया, प्रेजेंटेशन लेयर हो गया, ये सब जो है ये सब मैसेज को ट्रांसफर करते हैं मैसेज के फॉर्म में ही। ठीक है। सो ये बेसिकली आपकी डेटा यूनिट्स हैं जिसे हम प्रोटोकॉल डेटा यूनिट भी बोलते हैं, बट आप इन्हें डेटा यूनिट के टर्म से भी याद रख सकते हो कि द यूनिट जिसमें एक सिंगल, जैसे हम वो यूज करते हैं ना एसआई यूनिट्स, हम यूज करते हैं एसआई यूनिट्स, राइट। एसआई यूनिट्स होती है ना कि अगर हमें कुछ नापना है तो वी यूज इन सेंटीमीटर्स, अगर हमें कुछ वेट करना है तो केजीज में करते हैं। सो बेसिकली ये डेटा यूनिट्स है। हर लेयर की अपनी एक डेटा यूनिट है कि वो अपनी जो डेटा है, अपना जो इंफॉर्मेशन है वो कैसे सेंड कर रही है। सो अगर डेटा लिंक लेयर को कुछ भेजना है तो डेटा लिंक लेयर विल सेंड दिस इंफॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ फ्रेम्स, मतलब कि वो एक टाइम पे एक फ्रेम सेंड करेगा। फिजिकल लेयर एक टाइम पे एक बिट सेंड करेगी। तो दिस इज बेसिकली योर डेटा यूनिट। ठीक है ये चीज? यस मैम। ठीक है। सो अभी के लिए आई कीप इट हियर, आई विल मेक द पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन अगेन। ठीक है, पूरी स्टार्टिंग से बना लूंगी मैं। बाकी तो मैंने जो भी आपको समझाया उसको भी हटा के ऐड कर दूंगी जिससे कि और क्लियर आएगा आपको। और फिर कल जो है हम और अच्छे से जैसे हम पढ़ते हैं वैसे ही पढ़ेंगे। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई? ये दो लेयर्स आपको क्लियर हो गई? यस मैम। ठीक है। बाकी आपका कल नेटवर्क लेयर जो आपके नेटवर्क मॉडल्स हैं वो ऐसा कुछ है नहीं। अगर आज पीपीटी होती तो आज ही खत्म हो जाते, बट कोई नहीं, आपके हो जाएंगे। और कल फिर परसों से फिर हम भी स्टार्ट विद द फिजिकल लेयर। एक बार का सिलेबस देख लूं, 1 मिनट। कल ग्राफ थ्योरी का सेशन कैसा रहा सबका? मैम ठीक ठाक। मैं आ गया था, वैसे बस बेसिक रिवीजन ही था ना आप लोगों का। तो मैम प्लीज once tell the size of the graph, एजेस, नंबर ऑफ एजेस, total number of edges. Okay. सो आपका जो सिलेबस है इसमें हमने यहाँ पे हम है ना, ये हमारा कंप्लीट हो गया। नेटवर्क मॉडल्स में आपका है OSI मॉडल। लेयर्ड आर्किटेक्चर बेसिकली आपका इसमें कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेयर्ड आर्किटेक्चर इज सिंपली कि जो आपके लेयर्स हैं आपके, कैसे आपका जो आपके OSI मॉडल है, TCP मॉडल है, ये आपके लेयर्स के फॉर्म में ही है। मतलब लेयर, डिफरेंट लेयर्स हैं, वो कैसे इंटरैक्ट करती है, कैसे क्या है, ये आपका लेयर्ड आर्किटेक्चर में आ जाएगा। TCP IP प्रोटोकॉल सूट आपका हो जाएगा। फिर आपका ये मुझे देखना है, पोर्ट वाला देखना है, स्विचिंग टेक्निक्स वाला देखना है कि ये कहाँ पे कवर हो रहा है। तो उसके हिसाब से फिर मैं आगे कंटिन्यू। अब जो फिजिकल लेयर है उसमें आपको ये सब चीजें आ जाएंगी। लेयर्ड आर्किटेक्चर में 1 टायर 2 टायर ये क्या है? नहीं, लेयर्ड आर्किटेक्चर में 1 टायर 2 टायर नहीं है अभी फिलहाल। इसी में है ना आपका लेयर्ड आर्किटेक्चर भी। लेयर आर्किटेक्चर बेसिकली इट जस्ट एक्सप्लेन कर रहा है कि कैसे आपकी हायरार्की होती है, क्या आपकी लेयर होती हैं, आपकी क्या क्या जो आपकी लेयर्स हैं। जिसमें यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल दिया हुआ है कि अगर आपको कोई लेटर सेंड करना है तो आपकी क्या क्या डिफरेंट लेयर्स होंगी। तो वो आपको बता रहा है कि कैसे आपकी वही है क्या इसमें? क्या OSI मॉडल में जो लेयर्स है ना 7, वही है क्या मैम? क्या लेयर आर्किटेक्चर। हाँ, लेयर्ड आर्किटेक्चर बेसिकली होता है कि जो आपकी लेयर, जो आपकी वर्क जो आपकी हो रही है, जो आपके OSI मॉडल आपका लेयर पे बेस्ड है ना, लेयर आर्किटेक्चर पे बेस्ड है। सो हाँ, वो ये लेयर आर्किटेक्चर बेसिकली ये है कि जो डिफरेंट लेयर्स के थ्रू आप अपने टास्क को कैसे कंप्लीट कर रहे हो। तो कौन सी आपकी मिडिल लेयर्स हैं, कौन सी आपकी लोअर लेयर्स हैं, कौन सी आपकी हायर लेयर्स हैं, बेसिकली ये चीज है लेयर्ड आर्किटेक्चर में, और कुछ भी नहीं है। जो टायर 1 टायर 2 बोल रहे हो वो आप किसी और चीज का बोल रहे होगे। जो एक आपने याद है आपको इसमें आई थिंक OS में या OS में शायद से एक मॉडल हमने पढ़ते हैं ना, जिसमें हम यहाँ पे एक यहाँ पे सेट करते हैं और एक यहाँ पे एक फिर कुछ लेयर होती है, फिर एक यहाँ पे लेयर होती है। ऐसा कुछ तो याद नहीं आ रहा आपको? चलो मैं देख लूंगी। फिलहाल यहाँ पे आपका टायर 1 टायर 2 नहीं है। अगर कुछ मुझे लगेगा टायर 1 टायर 2 से रिलेटेड है कुछ आपका, तो मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, और कोई डाउट फिलहाल के लिए? सो ये आप PDF डाउनलोड कर लेना, इससे आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, अगर मतलब कर लो अच्छी बात है, वरना तो मैं इसी से आपके नोट सारे मैं इसी से बना रही हूँ।
सो इतनी कोई इशू नहीं बनेगा। मतलब ऐसा नहीं कि अगर आपने कर लिया और आप नहीं पढ़ पाए तो कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, बिकॉज मैं जो भी अपने पीपीटी बना रही हूँ मैं सिर्फ इसी से बना रही हूँ, बिकॉज मुझे बिल्कुल सही लगती है बुक, इसकी लैंग्वेज बहुत अच्छी सही है, मतलब बहुत ईजी है, ईजी टू अंडरस्टैंड वाली लैंग्वेज है। ठीक है, सो आज के लिए कीप इट हियर ओनली। शाम को आपका ग्राफ थ्योरी का जो रिवीजन है बच्चा वो करना है, और पीवाईक्यू स्टार्ट कर लेंगे हम आज ही। ओके, सो मैम हाँ जी। डेटा डीबीएमएस का जो है ना, डेटा वारहाउसिंग एंड डेटा माइनिंग, मैम फ्रॉम नेट इज देयर एनी पीडीएफ और एनी सोर्स? नेट है वैसे तो सोर्स उसका, नेट पे आप डालोगे डेटा माइनिंग पूरी, जितना आपके बुलेट्स में जो भी है ना सब आ जाएगा। मैम बहुत कुछ है, देखा मैंने बहुत, हाँ सी, अब देखो लेकिन डेटा माइनिंग जो है ना बेसिकली एक सब्जेक्ट है, यहाँ पे उन्होंने नेट में उन्होंने ऐड कर दिया है डीबीएमएस में, बट इट इज अ सब्जेक्ट इन इटसेल्फ। एमटेक में हमने वो सब्जेक्ट अलग से पढ़ा है, लोग उसपे मशीन लर्निंग के प्रोजेक्ट्स बनाते हैं डेटा माइनिंग पे ही अकेले। सो डेटा माइनिंग बहुत बड़ी चीज है। अब उन्होंने क्या किया है, आई थिंक दे जस्ट वांट कि हमें बेसिक पता होना चाहिए। ऐसे बिग डेटा, लोग बिग डेटा के कोर्सेज करते हैं 6-6 महीने के, तब जाके उन्हें बिग डेटा समझ में आती है। सो आप कैसे, मतलब पता नहीं क्या समझ के ये लोग सिलेबस बनाते हैं कि आई डोंट नो व्हाट दे एक्सपेक्ट फ्रॉम अस, कि हम 6 महीने का कोर्स जो है वो 6 दिन में कर लेंगे, पता नहीं। बट इसलिए कि जितना आपने पढ़ लिया, देखो जितना आपने पढ़ लिया है उसको आप अच्छे से पढ़ते रहो, बाकी जो भी आपका एक्स्ट्रा है वो आई मेक श्योर कि या तो यहाँ पे या फिर यूट्यूब पे आपका वो कंप्लीट हो जाए। जैसे आपका वो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का टॉपिक है वो मैंने वहां ऐड कर दिया यूट्यूब पे। सिमिलरली आपका ट्रांसपोर्टेशन और असाइनमेंट की जो भी थ्योरी बची थी वो मैं आपको वहीं पे ऐड कर दूंगी, क्योंकि देखो यहाँ पे मेरा मेन फोकस ये है कि आपका जो सिलेबस है जो अच्छे से आपको समझ में आ जाए, उसका रिविजन, उससे रिलेटेड एक्स्ट्रा जो भी कुछ है वो हम वहां पढ़ेंगे। ठीक है, और अगर मुझे लगेगा कि आपकी पेपर 1 के साथ साथ कुछ और क्लास भी चलानी है, सो आई ट्राई टू ऐड वन मोर क्लास। आई एम नॉट श्योर ऑफ इट, आई एम जस्ट ट्राइंग। ठीक है, तो मैं उसके हिसाब से आपको बताऊंगी, क्योंकि अभी मेरी सबसे बड़ी दिक्कत क्या है ना कि मेरे पास पीपीटीज रेडी नहीं है। जो टीचर्स बहुत टाइम से पढ़ा रहे होते हैं ना उनके पास ऑलरेडी पीपीटीज बनी होती है, तो उनको इतना कुछ ज्यादा वर्क नहीं करना पड़ता। बट मेरा क्या है कि आई हैव टू फाइंड द मटेरियल मिल गया एग्जैक्टली ये सब तो नहीं छाप सकती ना, कुछ अलग मिल जाए, कुछ अच्छा मिल जाए, सो दैट्स व्हाट इट टेक्स टाइम। इसीलिए जितना अभी मेरे पास मटेरियल ऑलरेडी अवेलेबल है वो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, उसके बाद नेक्स्ट में जो भी हम धीरे धीरे करके ऐड करते रहेंगे, क्योंकि अभी देखो पेपर का मुझे नहीं लगता कि वो पेपर आपका जून आ गया ना, जून में तो 100% नहीं होने वाला है। ठीक है, क्योंकि जून में अगर होना होता तो आपका कुछ इन्फॉर्मेशन तो आ गई होती अब तक। ठीक है, बट मैम प्रोबेबिलिटी जुलाई और हाँ अगस्त। जुलाई में आपका हो सकता है, जुलाई अगस्त में 100% हो सकता है। देखो लेकिन अब क्या है ना, कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि पिछली बार जब इतना ज्यादा कोविड, मतलब जितना इस साल है इतना नहीं था। ठीक है, था पर इतना नहीं था जितना इस साल है। तो तब एग्जाम कब हुआ था, नवंबर में हुआ था। समझ रहे हो बात को? यस मैम। सो अब देखो इस बार कब होता है, लेट्स सी। क्योंकि अब पता नहीं, 2 बार तो मुझे नहीं लगता, अगर मुझे नहीं लगता कि इस बार 2 बार हो पाएगा, बट देखते हैं क्या होता है, कब होता है। Yes, ma'am. ठीक है, Then, if it possible, then you also make also notes of these also. हाँ, ये data warehousing, data mining, हाँ मैं ये because I have क्लासेस आपकी seen ऐड, मैं ये नोट्स नहीं, मैं पढ़ाऊंगी इन टॉपिक्स को, डोंट वरी। मैं इन yes, टॉपिक्स ma'am. को Yes. पढ़ाऊंगी। अब वो कहाँ हम क्लास कर Okay. पाते हैं वो देखने वाली बात है कि यहाँ होगी या वहां होगी, बट होगी जरूर। मैंने आपको जो शेड्यूल बनाया था, मैंने आपको सिर्फ जुलाई तक का दिया। जुलाई में मैंने डीबीएमएस का ऐड किया है ना, 2 टॉपिक्स ही ऐड कर पाई हूँ मैं। उसके बाद मैं आपका एक डेटा, क्योंकि डेटा माइनिंग में आपको लगेगा आपको अराउंड कम से कम 2-3 दिन चाहिए, क्योंकि हमें ऐसे हवा में नहीं उड़ाना है, कि क्योंकि हवा में तो आप वैसे खुद से ही पढ़ लोगे, है ना। इसीलिए मैं अराउंड टू क्लासेस अराउंड में लूंगी डेटा माइनिंग के लिए। उसके बाद फिर हम अपना पेपर 1 का जो नेक्स्ट टॉपिक है रिसर्च एप्टीट्यूड के बाद वो स्विच करेंगे। ठीक है, Okay. Thank you, ma'am. और यहाँ पे फिर अब आपका कंप्यूटर नेटवर्क तो लंबा चलेगा, सो इसका तो कुछ कह नहीं सकते। अराउंड अभी 3 क्लासेस हो गई हैं आज, सो आई थिंक 15 क्लासेस तो मुझे लगता है कि अगर हम आराम से पढ़ेंगे तो लग जाएंगे इतने में ना, मतलब आई थिंक 26 है आज, आई थिंक 15 जुलाई में भी, मतलब बहुत ज्यादा बता दिया मैंने। 10 to 15 तक आई ट्राई, जून
जून, आई ट्राई टू 10 to 15 जून तक मैं कोशिश करूंगी कि आपका कंप्यूटर नेटवर्क का चीज खत्म हो जाए। देखो ये तो बिल्कुल थ्योरी है, आगे जो न्यूमेरिकल्स है ना, और हम साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी, इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कुछ ज्यादा है नहीं। जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो बेसिकली स्टार्ट होंगे जब आपकी फिजिकल लेयर स्टार्ट हो जाएगी ना, उसमें जो आपके टॉपिक्स हैं जैसे प्रोपगेशन डिले, ट्रांसमिशन टाइम और इन सब के न्यूमेरिकल्स हैं, जब वो आ जाएंगे तो आपका चीज शुरू होगी। और फिर आपकी जो मेन चीज शुरू होगी वो है आपकी एड्रेसिंग। ठीक है, और प्लीज देखो कुछ भी समझ ना आया करे, कुछ भी तो ऐसे चुप मत हो जाया करो। ठीक है, इसमें एक ऑप्शन आएगा है हैंड रेस करने का, वो कर दिया करो। ठीक है, या फिर कुछ भी बोल दिया करो, या मैम वेट बोल दिया करो, या स्टॉप बोल दिया करो। अगर मैं कुछ सेंटेंस बोल रही हूँ तो वो कंप्लीट हो जाए फिर रोक लो। ठीक है, बट ऐसे प्लीज चुप मत हुआ करो, फिर मुझे ना ये लगता है कि कुछ भी समझ नहीं आ रहा आप लोगों को। भले आ भी रहा होगा तब भी मुझे लगता है कि आप लोगों को कुछ भी पॉइंट समझ नहीं आ रहा है। आप लोग ये बात समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? यस मैम। ठीक है, सो प्लीज बोला करो नहीं समझ में आ रहा, ऐसा तो है नहीं। ठीक है कि मैं आपको बिल्कुल क्लास से बाहर निकाल दूंगी, नहीं अब मैं समझा रही हूँ दोबारा जाओ क्लास से, ऐसा तो नहीं होगा। मैं समझाऊंगी आपको दोबारा। तो कभी कभी हो सकता है कि हम जो चीजें समझाना चाहते हैं वो नहीं समझा पाते, इट इज अ पॉसिबिलिटी। और ये भी बहुत पॉसिबल है कि हो सकता है जो मैं समझा रही हूँ आपको ना समझ में। सो आप मुझे बताओगे, सो आई यूज अ डिफरेंट अप्रोच टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट थिंग। ठीक है, सो नहीं समझ में आ रहा हुआ करे, जो चीज अच्छी नहीं लग रही हुआ करे, इतना तो हम लोग, मैंने आपको इतने फ्रैंक तो हैं हम लोग कि आप मुझसे बोल सकते हो कि मैम नहीं समझ में आ रहा, या ये चीज ऐसे मत पढ़ाओ, या चीज ऐसे मत करो। इतना तो है आई थिंक, राइट? यस मैम, यस मैम, यस। ठीक है, सो जो भी प्रॉब्लम हुआ करे जस्ट टेल मी डायरेक्टली, मुझसे बोल दिया करो। आई जस्ट ट्राई कि मैं उस चीज को दूसरे ही तरीके से आपको समझाऊं। ओके यस मैम, यस। ओके, चलो तो आज के लिए आई कीप इट हियर ओनली। और बाकी जो भी आपकी है, कल हम अच्छे से पूरी पीपीटी आपकी रेडी रखूंगी, जिससे कि हमें ऐसी प्रॉब्लम ना हो जो आज हुई ना, मतलब ऐसे पीडीएफ ना निकालनी पड़े। ठीक है, रेस्ट तो और कुछ नहीं है। बाकी कल मिलते हैं, और शाम को क्लास है ही आपकी, तो उसमें आ जाना। ओके यस मैम, थैंक यू मैम। ओके, चलो थैंक यू एवरीवन।